Hello and welcome to the another episode of Geoinformatics Podcast Inside, powered by NIGMT Foundation. Today is your host. I am Rashmi Singh. This episode is dedicated for career in geoinformatics. We are joined our technical expert Dr. Ravindra Tiwari. So let us begin our podcast. Hello sir. थैंक यू रश्मि कैसे हो आप मैं बढ़िया सर. Okay sir. My first question is why geoinformatics is the future? Rashmi is very big question. Currently we are living in digital era, and in this digital era we are using AI, machine learning, AI based some tools like Power BI, Google Earth Engine. These all are the scope, and I think our defense sector, disaster management, smart city, these all kind of you can say sectors is using geoinformation technology. Some directors, our governments, not only Indian governments, other governments out of India, foreigner are also using this technology. I think they are investing the money in this sector. So definitely, if our share market is growing in the space technology, our Prime Minister Modi is also doing very good effort in drone technology, in space science technology. I think currently in the news, in the space station, I think one candidate from the India has been Yes. selected for that kind of Yes. things. So definitely it is the scopic, and if we are making decisions for policy making, so government is using special data. So I think आगे आने वाले टाइम पे जो जीआईएस एक्सपर्ट्स होंगे वो बहुत बैकबोन बनने वाले हैं. Yes. तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, खासतौर से जो भी अर्थ साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले हों या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले हों, तो फ्यूचर तो ज़बरदस्त है. Okay, sir. Okay, sir. My second question is how GIS is help for spatial understanding. हाँ, यस, गुड. स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मीन्स सी जीआईएस आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा प्रोवाइड कराता है, और वो डेटा एक जगह जब इकट्ठा होता है तो उसका उसका मैनेजमेंट और उसका एनालिसिस करने में एक प्लेटफॉर्म देता है. Okay. So once you have a platform for understanding from different sources of data, you can manage it. You can take decisions. Sometimes you can find some hidden trends which is not visible directly. Sometimes we use this data for understanding the challenges and finding the solutions. Okay. So that is the reason I think ये बहुत helpful है हमारे विद्यार्थियों के लिए. Good. And my next question is what are the application across diverse sectors? Number of application, I think in 2013 I have seen one quote of government of India. They are saying that it was the time of 2013 by Atal Bihari Vajpayee has told to us that more than 213 sectors are there where GIS technology can be useful, but right now we are in 2025. So I think more than 400 to 500 sectors are there where we can use this technology. And it's not just world. We have used this technology in smart cities. We have used this technology in forestry, agriculture, disaster management. I think drone is booming in different sector. Army, military, defense is using this technology. Share markets, you can say business growth, town and country planning, forestry, biodiversity kind of applications are there. Hydrology, engineering, especially engineering applications. जैसा हम बोलते हैं कि इंजीनियर्स देश की धड़कन है, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो ब्रिज बन रहा हो, हाईवे बन रहा हो, रेलवे बन रहा हो, तो उस सब में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है. और गडकरी साहब तो कमाल कर रहे हैं. कभी आपने सुना होगा कि जो सारा टैक्स सिस्टम को ठीक करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए वो जीपीएस यूज़ करने वाले हैं. सो नाउ यू नीड नॉट टू स्टे एट द टोल गेट, राइट. सो वाइडली एप्लीकेशंस है. आई थिंक वन मोर एप्लीकेशन इज देयर. रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का विस्तार का यूज़ भारत सरकार ग्रीन हाईवे की मॉनिटरिंग में करने वाला है. Okay. मतलब डायरेक्ट इसरो की सैटेलाइट्स अब हाईवे के साथ कनेक्ट होंगी और वो आपको बताएंगे कि रोड के साइड में जो लगा हुआ ग्रीनरी है उसका हेल्थ क्या है. मतलब मई जून जुलाई में जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें हेल्थ उनकी क्या है, और जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, बारिश हो गई, थोड़ा सा ठंडक आ गई मौसम में, तो इन सब चीज़ों का लाइव मॉनिटरिंग. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लाइव डेटा को निकालना और उस डेटा के बिहाफ पे सलूशन देना. ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और इस चैलेंज को पूरा करने में, इस चैलेंज
को एक्सेप्ट करके उसका सोल्यूशन देने में इस टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त रोल हो सकता है, हो भी रहा है। थोड़ा थोड़ा सेक्टर्स में इस्तेमाल हो चुका है, बट आई थिंक आगे आने वाले टाइम में और ज़बरदस्त होने वाला है। यही इसका स्कोप है, यही इसका डिमांड है और यही अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। ओके सर, तो मतलब आपका कहना है कि इसको इस टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में ये यूज होती है और आगे आने वाले टाइम में भी इसका और ज़्यादा स्कोप यूज अच्छा है। ज़्यादा यूज होगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जीआईएस का क्या रोल है? Rashmi, I was working in 2019. It was the project of smart city. When government has given, I think, idea of 500 smart cities to India, right? So initially they have started working on 100 smart cities. So one of them was there, I think, गाजियाबाद के लिए हमने proposal बनाया था। ओके So मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वॉट एवर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव, यू जस्ट प्रोवाइड अस, on the behalf of that infrastructure we'll plan something. So existing infrastructures की mapping रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हुआ था, और उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आई जो एक्चुअल में हमें पता नहीं थी। और जब वो डेटा सामने आया तो ये लगा कि इतना डेटा अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करते तो शायद ही हम उसको बना नहीं पाते। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट मीन्स you can make a pollution map just by live sensors. आपने देखा होगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के सेंसर दिल्ली के बहुत सारे सेंटर्स में लगे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ NSUT एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लगा हुआ है, NSBT में लगा हुआ है, इधर रेलवे स्टेशन के आसपास लगा हुआ है। तो यहाँ से लाइव डेटा मिलता है हमें पोल्यूशन का, और आप उस डेटा का इस्तेमाल करके करंट पे बता सकते हो और लोगों को सचेत कर सकते हो या उनको सूचना दे सकते हो कि यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल इतना है। तो इंटरनेट थिंग्स का मतलब लाइव डेटा सेंसर से इकट्ठा करना और उसको विजुलाइज करके सूचनाओं में कन्वर्ट करना, मतलब नंबर ऑफ डेटा लेना, नॉट ओनली फॉर पोल्यूशन। अभी मैं देख रहा था टेम्परेचर के केस में कि गवर्नमेंट्स ने कुछ एरियाज में क्या ऑरेंज जोन बताया था, अभी जस्ट कुछ दिनों पहले की बात है। तो वो ऑरेंज जोन बताने का उनका एक रीजन था कि वो लाइव डेटा वहाँ सेंसर से उठा रहे थे और उसको मैपिंग कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, और ये देख पा रहे थे कि कौन कौन सी एरिया में टेम्परेचर किस खास टाइम में बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताकि लोगों को इस नुकसान से बचाया जा सके, इस डिजास्टर से बचाया जा सके, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंटरनेट थिंग्स के माध्यम से यूज़ हो जा रही थी। तो स्मार्ट सिटी और इंटरनेट थिंग्स दोनों में इस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, और अभी तो कम हो रहा है। जैसे जैसे हमारे विद्यार्थियों का कोडिंग सिस्टम बढ़ेगा, मतलब जो आजकल आया है वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस, जीआईएस डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग्स जब बढ़ेगा तो मुझे लगता है ये और फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। ओके तिवारी सर, एनआईजीएमटी फाउंडेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेक्टर में कौन कौन सी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है? रश्मि, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एनआईजीएमटी फाउंडेशन कई सारी यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएशंस के साथ प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। ये यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे CBL यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, नेशनल PG कॉलेज लखनऊ का है, संगम यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के साथ, कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के साथ एफिलेटेड ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद बच्चे को जॉब तो लगना ही है, लेकिन जॉब के साथ साथ उसको मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ मिलेंगी जिससे वो कहीं भी MNCs में या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कोर्सेज हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और लेटरल एंट्री के प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रहे हैं। वो डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, वो MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी भी है, MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन लेटरल एंट्री भी है। जिनको थोड़ा सा और आगे टेक्निकल में जाना है तो वो MTech रिमोट सेंसिंग GIS भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। इनके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो PhD MPhil वगैरह करते हैं तो उनके लिए हमने कुछ कस्टमाइज कोर्स उनके रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। वो रिलेटेड टू हेल्थ है, एजुकेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हाइड्रोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, फॉरेस्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम इनको कस्टमाइज प्रोग्राम्स चलाते हैं। कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं जिनको अपने स्किल डेवलपमेंट में आना है, अपनी स्किल इन्हांस करनी है, वो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हमारे साथ कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास कैंडिडेट आते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोग आते हैं जिनको अपने जिन इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उनके लिए प्रोग्राम चलाते हैं। तो 3 मंथ से लेकर के 3 साल तक के प्रोग्राम्स NIGMT फाउंडेशन प्रोवाइड करा रहा है विथ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड सारे कोर्सेज। थैंक यू सो मच सर। आई होप आज का हमारा यह पॉडकास्ट
हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।